सिलीगुड़ी में टीएमसी नेता के घर का अवैध निर्माण को तोड़ने गए नगर निगम के कर्मचारियों को करना पड़ा विरोध का सामना। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही कूच बिहार जिला तृणमूल कांग्रेस ने प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। सिलीगुड़ी में नशीले पदार्थों के साथ 2 गिरफ्तार, भारी मात्रा में प्रतिबंधित टैबलेट और कफ सिरप बरामद। संदेश खाली के विषय में नहीं है जानकारी, सयानी घोष के इस बयान को लेकर विपक्षियों ने बोला हमला। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। नगर निगम के कर्मचारी आज सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 47 स्थित पति कॉलोनी में एक घर के अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए गए थे। जानकारी के मुताबिक नगर निगम के कर्मचारी वार्ड नंबर 47 के तृणमूल महासचिव सौमित्रा देवनाथ के घर को तोड़ने के लिए गए थे। इससे पहले उन्हें नोटिस भी दिया गया था। उस मकान के नीचे तृणमूल का चुनाव कार्यालय भी खुला है, लेकिन इसको लेकर विरोध शुरू हो गया। उन्होंने वार्ड पार्षद की भूमिका पर सवाल उठाया। मेयर गौतम देव ने कहा कि इस मामले पर चर्चा की जाएगी, कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्य किया जाएगा। নোটিশ কি করে হলো উনি প্রশ্ন করেছিল, তো বলছে এটা কমপ্লেনার আছে এবং এটার উপরে প্রেশারও আছে। ইঞ্জিনিয়ার বলছে। আপনার ওয়াইফ একটা অভিযোগ করতেছে যে ওয়ার্ড কাউন্সিলর আপনার থেকে নাকি 10 লক্ষ টাকা চেয়েছিল। এটা ওনার কাছেই বলেছিল, লোক মারফত খবর পাঠিয়েছিল, ঠিক আছে। মানে কি পারপাসে আপনাদের থেকে টাকা চেয়েছে সেটা বলছে যে অভিযোগকারী সে হলো কাউন্সিলরেরই, এখন তাকে ধরে নিতে হবে, কাউন্সিলরেরই লোক। আমি তার সঙ্গে মীমাংসায় বসতে চেয়েছিলাম যে সে কমপ্লেনটা তুলে নেওয়া হোক। সে বলেছে আমার এইসব কাজ করতে গিয়ে আমার 10 লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে, আমাকে যদি 10 লক্ষ টাকা দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে আমি এই অভিযোগগুলো তুলে নেব, ঠিক আছে। এবং लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही कूच बिहार जिला तृणमूल कांग्रेस ने प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। आज कूच बिहार जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष अभिजीत दे भौमिक ने कूच बिहार ब्लॉक नंबर 2 के खागराबाड़ी इलाका में दीवार लेखन के माध्यम से चुनाव प्रचार का आगाज किया। कूच बिहार जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष अभिजीत दे भौमिक ने कहा, कूच बिहार लोकसभा सीट पर भाजपा के अलावा तृणमूल का कोई अस्तित्व नहीं है। हम अभियानों में नंबर 1 हैं और तृणमूल कांग्रेस चुनाव परिणामों में नंबर 1 होगी। बीजेपी दूसरे या तीसरे नंबर पर रहेगी। इस दीवार लेखन पर उम्मीदवारों का नाम तभी लिखा जाएगा जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उम्मीदवारों की नाम की घोषणा करेगी। सभा निर्वाचन निये समस्त रकम उत्तेजना तैरी हয়েছে। আমরা কুচবিহার 1 নং তপশিলি লোকসভা কেন্দ্রের ভোট প্রচারের ঢাকের বাড়ি আমরা দিয়ে নিলাম। কুচবিহার উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রে খাগড়াবাড়ি থেকে আমাদের দেয়াল লেখনের কাজ শুরু হলো। দেয়ালের লিখন মানুষ এবারে পড়তে পারছে যে বিজেপি আর থাকছে না। বিশেষ করে পশ্চিমবাংলায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে বাজেট, তারপরে আর ঘরে বসে থাকা যায় না, দেয়াল লিখতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে হচ্ছে সবাইকে। দেয়ালের লিখন লিখতে মানুষই ছুটে এসছে। দেখুন কত মানুষ রাস্তায়। 100 দিনের বকেয়া টাকাও ফেরত পাচ্ছে মানুষ। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার টাকা ভাতা বেড়ে গেল এবং 50 দিনের কাজের গ্যারান্টি রাজ্য সরকার দিচ্ছে। এরপরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর জন্য যে দেয়ালের লিখন, সেটা মানুষ পড়তে পারছে, বুঝতে পারছে আগামী দিনে কি হতে যাচ্ছে। বিজেপি হারে হারে টের পাচ্ছে। এখন শুধু আমরা খুব আশঙ্কায় আছি যে দাঙ্গার পরিবেশ যে কোনো মুহূর্তে বিজেপি তৈরি করতে পারে। তাই মানুষকে একটু সচেতন, সকলে মিলে একটু বেশি করে নজরদারি রাখতে হবে। মানে এখনো তো নির্বাচন ঘোষণা হয়নি, প্রার্থী তো অনেক দূরের কথা, মানে তারা কেন হঠাৎ করে আপনারা এখনই আমাদের তো অনেকটাই কাজ আমরা এগিয়ে নিয়েছি, কাজেই এই কাজটা আর পিছিয়ে থাকি কেন? পশ্চিমবঙ্গের বাজেট অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রী পুরোটাই এগিয়ে দিয়েছেন। আমাদের দেয়াল লিখনের কাজটা শুরু করলাম। এটা কি এখন জেলা জুড়ে চলবে? জেলা জুড়েই চলবে। মানুষের কাছ থেকে ওয়ালের পারমিশন নিতে হবে, ওয়াল রং করতে হবে, এগুলো তো সময়ের ব্যাপার আছে, সেটা করে নিচ্ছি। ওয়াল লিখনে কি আপনারা 1 নম্বর থাকবেন? দেওয়াল লিখনে তো 1 নম্বর থাকবেই। বিজেপি কোনো নাম্বারই থাকবে না। বিজেপিকে এবার দ্বিতীয়ত লড়তে হবে। প্রার্থীর নাম থাকবে? প্রার্থীর নাম আমরা কি করে দিই? মুখ্যমন্ত্রী যেদিন নাম ঘোষণা করবেন সেদিন প্রার্থীর নাম বসবে।
एसओजी ने भक्तिनगर थाने की पुलिस ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर सिलीगुड़ी में प्रतिबंधित दवाओं के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों के नाम रोनी घोष और संतोष महतो है। दोनों सिलीगुड़ी नगर निगम के वार्ड नंबर 40 के निवासी है। गिरफ्तार आरोपी को कई महीनों से शहर में प्रतिबंधित दवाओं का कारोबार कर रहे थे। दोनों विभिन्न जगहों में जाकर ड्रग्स की डिलीवरी करते थे। गिरफ्तार लोगों के पास से भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली टेबलेट के साथ प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया गया। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया। मालदा के एक क्रिकेट टूर्नामेंट में उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंची युवा तृणमूल अध्यक्ष श्यानी घोष ने कहा कि वह संदेश खाली के विषय में नहीं जानती है। बता दें कि मालदा हरिश्चंद्रपुर ब्लॉक नंबर 2 सुल्तान नगर में एक क्रिकेट टूर्नामेंट में उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंची थी और इस कार्यक्रम में उन्होंने गाना भी गाया, लेकिन उन्हें संदेश खाली के सवाल पूछा गया तो टाल गई और कार में बैठ गई। यह तृणमूल अध्यक्ष श्यानी घोष ने कहा कि उन्हें संदेश खाली के बारे में जानकारी नहीं है। हरिश्चंद्रपुर के सुल्तान नगर में मालिक इस्लाम मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन पर अन्य कई दिग्गज आए थे। কি কোথায় এসেছিলেন আপনি? আজকে সুলতাননগরে এসেছি, এখানে একটা বুলবুল খানের উদ্যোগে আরে এক মিনিট প্রোগ্রাম হচ্ছে, খুব সুন্দর প্রোগ্রাম, যাতে প্রত্যেকবার আসতে পারি সেটাই চাই। দিদি 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 আরেকটা প্রশ্ন যে সন্দেশ দিদি দিদি সন্দেশ খালিতে দিদি जलपाईगुड़ी आज उच्च माध्यमिक परीक्षा का पहला दिन है। परीक्षार्थियों के चेहरे पर परीक्षा को लेकर उत्साह के साथ थोड़ी चिंता भी देखी जा सकती थी, लेकिन इस बीच हायर सेकेंडरी परीक्षा के प्रथम दिन ही चीटिंग करने के लिए नोट लेकर परीक्षा केंद्र में जाने की कोशिश करते हुए कुछ छात्र दिखाई दिए। इस कोशिश में उच्च माध्यमिक परीक्षा के पहले दिन कई परीक्षार्थियों के परीक्षा केंद्र पर नोट लेकर प्रवेश करते पकड़े गए। शुक्रवार को यह घटना जलपाईगुड़ी के बेलाकोपा केवलपाड़ा हाई स्कूल के बाहर देखी गई। ऐसे विद्यार्थियों स्कूल के प्रवेश द्वार पर खड़े देखा गया। मालदा के एक नर्सिंग होम में डॉक्टर पर यौन उत्पीड़न का विरोध करने पर एक युवती के पेट में लात मारकर उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। पेट में दर्द होने पर नर्सिंग होम के हाउसकीपिंग स्टाफ ने आदिवासी लड़की को इलाज के लिए मालदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। घायल 25 वर्षीय आदिवासी युवती का घर हबीबपुर इलाके में है। घायल आदिवासी लड़की के साथ खड़े होकर नर्सिंग होम के कर्मियों, अन्य साथियों और संबंधित क्षेत्र के पूरे आदिवासी समुदाय ने विरोध जताया। देखते ही देखते आदिवासियों ने दोपहर से पुराने मालदा थाना क्षेत्र के शाहपुर डिस्को मोड़ इलाके में मालदा नालागोला राजा मार्ग को जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। जब तक डॉक्टर की गिरफ्तारी नहीं हो जाती आंदोलन जारी रहेगा। ओल्ड मालदा थाने की पुलिस ने कहा कि शिकायत के आलोक में पूरे मामले की जांच की जाएगी। এখন ওদের বক্তব্য হচ্ছে যে ওকে মারা হয়েছে, যেটা হচ্ছে যে ওকে মারা হয়েছে এটা হচ্ছে ওর অভিযোগ, কিন্তু আমাদের কাছে এই মুহূর্তে কোনো প্রুফ নেই, ঘটনার সত্যতা নিয়ে কোনো প্রুফ নেই। কিন্তু যেটা হচ্ছে সবাই একই কথা বলেছে ওরা, সেই জন্য ওরা এখানে মানে অবস্থান বিক্ষোভ করছে। ওদের দাবি হচ্ছে যে ডক্টর শশী গুপ্তাকে সামনে আসতে হবে। আমরা আলোচনার মাধ্যমে চেয়েছিলাম ব্যাপারটা মীমাংসা হয়ে যায়, কিন্তু মেয়েটি যে হসপিটালে অ্যাডমিট হয়েছে এই খবরটা আমাদের কাছে ছিল না। আমি তাকে প্রাথমিক ট্রিটমেন্টের জন্য বলেছিলাম যে তুমি আমাদের এখানে ডক্টর দেখাও, চলো আমি নিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু ও বললো যে আমরা বাইরে বসছি, ম্যানেজমেন্টকে বলুন আসতে, সবাই আসুক। আমাদের ডিরেক্টররা ছিলেন, আমরা চেয়েছিলাম কথা বলতে ওদের সাথে, কিন্তু ওরা আমাদের সাথে কোনো কোঅপারেট করে না। কিভাবে দেখছেন একজন স্টাফকে একজন ডাক্তার মারছেন, এর মহিলাকে আদিবাসী মহিলাকে পা দিয়ে মারছেন, এটা কিভাবে দেখছেন মহিলা হিসাবে, প্রধান হিসাবে? না, সেটা তো ডেফিনেটলি এখন সেটা আমরাও চাইছি যে ব্যাপারটা একটা কোনো হোক, যেহেতু ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে আমি কিছু নেই, কিন্তু যেটা শুনেছি এবং মেয়েটি আমার কাছে এসেছিল, ওকে আমি বলেছিলাম তুমি লিখিত দাও, ও লিখিত দিয়েছে। তো আমরা আরো ডিরেক্টরদের সাথে কথা বলেছি, দেখুন সবাই তো না, ওদেরকে আমরা যথেষ্ট মানে সেভাবে রেখেছি। এখন কি বলবো বলুন, দেখা যাক এখন আগে কি হয়। ডাক্তারবাবু কি বলছেন? ওনার সাথে আর কোনো কথা হয়নি, উনি সকালবেলা বেরিয়ে গেছেন এখান থেকে, ওনার সাথে আর কোনো কথা হয়নি।
উনি ছিলেন, উনি সকালে বেরিয়েছেন, 8টার দিকে বেরিয়ে গেছেন, 8:30 9টার পরে বেরিয়েছেন। সন্ধ্যায় উনি আছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, উনি তো ডিরেক্টর আমাদের। আগে কখনো আসেনি, এই আজকে ফার্স্ট টাইম দেখছি। অ্যাকচুয়ালি আমি এখানে 4-5 দিন হয়েছে আমার জাস্ট জয়েন করা। আমার নাম ইন্দ্রাণী রায়চৌধুরী। আমি HR ম্যানেজার নরওয়ে হসপিটাল। नागालँड सरकार डियर 500 सॅटर्डे वीकली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड गॅरंटीड 4 डिजिट मा 4 डिजिट मा पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड टिकट 500 रुपया ड्रॉ 17 फरवरी डियर 500 सॅटर्डे वीकली लॉटरी मा 2.5 करोड विजेता शीतल सिंग के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. Damro, internationally trusted furniture. कामती हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स सेंटर, आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। अब नया चिकित्सा केंद्र जहां बेहतरीन डॉक्टरों द्वारा उच्च स्तरीय देखभाल मिलेगी। इंटरनल मेडिसिन, गायनेकोलॉजी, ENT, कार्डियोलॉजी, गेस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, जनरल सर्जरी सभी यहाँ है। हमारे यहाँ एक उच्च स्तरीय डायग्नोस्टिक सेंटर है जिसमें नवीनतम उपकरण है और उचित कीमतों पर सेवाएं प्रदान की जाती हैं। स्वास्थ्य जांच पैकेज के साथ कलर डॉपलर स्टडी, पैथोलॉजी सर्विसेज, अल्ट्रासाउंड, ECG, डिजिटल एक्सरे, EEG आदि उपलब्ध है। हमसे मिलें कामती हेल्थ केयर, near Viga Circle Mall, opposite Mahindra Showroom, Siliguri. Contact 9134343404. Discover excellence at Mayur School, Siliguri, proudly governed by the Mayo College General Council, Ajmer, with a legacy of 150 years in education. Our 8-acre lush green campus and AC-equipped smart classes offer cutting-edge learning experiences. Mayur fosters a strong sports culture. Our CCTV-covered campus and GPS-equipped buses provide utmost security to our students. Admissions open for grade 1 to 7 with hostel facilities. A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813. तो क्या हुआ है, मतलब स्पॉन्डिलाइटिस वोमिटिंग जैसा होता है और सर चक्कर देता है। तो मेरा जो इश्यू होता है, मैं गाड़ी में बैठ नहीं पाता हूँ, 4 व्हीलर हो या फिर बस पूरे वहाँ पर ऐसे सर झुका के कुछ मोबाइल हो कुछ भी मैं देख नहीं पाता हूँ। मतलब मेरा सर घूमने लगता है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट में देख। यहाँ पे पेन हो रहा है? यहाँ में कभी कभी तो यहाँ पर भी आ जाता है पेन, मतलब यहाँ से एकदम पूरा ये यहाँ तक शोल्डर क्लोज हो जाता है यहाँ तक। रिलैक्स। It's now 2 out of 10 it is 2. কন্ট্যাক্ট নাম্বার আমাদের স্ক্রিনে দেয়া আছে। থ্যাংক ইউ। ओ बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। देखिए, कल नैन्सी के स्कूल में फीस भरने का दिन है। अब मैं क्या करूं? ऊपर से कल बैंक की भी छुट्टी है। जरा अपना मोबाइल देना। इस मोबाइल में आप क्या करने वाले हैं?
मणप्पुरम लॉकर में जो सोना रखा है वो कब काम आएगा? ओह, मैं तो भूल ही गई थी। अपनी जरूरत के समय कभी भी हम अपने सोने के मूल्य का पैसा अपने अकाउंट में पा सकते हैं। सोने को मणप्पुरम लॉकर में रखने से हम भी स्मार्ट बन सकते हैं। अपना गोल्ड मणप्पुरम लॉकर में रख। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो, कहीं किधर भी स्मार्ट बन जाए। मणप्पुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया में। केवल 6 रुपया में 1 करोड़, 6 रुपया में 1 करोड़। के 1 करोड़ केवल 6 रुपयामा? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया। 6 रुपयामा 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपयामा 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो। उत्तर दिनाजपुर चोपड़ा के चेतनागाछ इलाके में 4 बच्चों की मौत के मामले में एक ठेकेदार को गिरफ्तार किया गया है। चोपड़ा पुलिस ने बीएसएफ नालों के प्रभारी ठेकेदार को गिरफ्तार किया है। आरोपी ठेकेदार का नाम असीरुल आलम हक है। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी को 14 दिन की पुलिस हिरासत की मांग करते हुए आज इस्लामपुर महका अदालत में पेश किया गया। आपको बता दें कि इस बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर चेतनागाछ इलाके में मिट्टी में दबकर 4 बच्चों की मौत हो गई थी। मालदा जिला के गाजोल में एक शराब दुकान के कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस घटना में गाजोल थाने की पुलिस ने 3 और बदमाशों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए दोनों 3 अपराधियों के नाम हैं खुदाबख्श एलिजा फतीक, मजहर हुसैन और जहीदुल इस्लाम मुस्तफ़ा। आज उन बदमाशों को मालदा कोर्ट पेश किया गया। अलीपुर द्वार में बाघों के लिए भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आज बक्सा बाघ अभयारण्य के राजा भातगांव जंगल में 29 चीतल हिरणों को छोड़ा गया। पिछले 3 वर्षों में लगभग 100 चीतल हिरणों को बक्सर जंगल में छोड़ा गया है, जबकि बक्सर जंगल सांभर और भाणकी हिरणों से समृद्ध है। चीतल हिरण जो बाघों के आहार का मुख्य हिस्सा है, बक्सर में बहुत कम आबादी में प्राकृतिक कारणों से वन विभाग ने कमी को पूरा करने के लिए राज्य के विभिन्न अभयारण्यों से बक्सर वन में काले हिरणों को लाने की योजना बनाई है। आज फिर वन विभाग के अधिकारियों को मौजूदगी में 29 काले हिरणों को बक्सर बाघ परियोजना के राजभातखावा जंगल छोड़ा गया है। मालदा हायर सेकेंडरी परीक्षा के पहले दिन ही विद्यालय की गलती के कारण परीक्षार्थियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। विद्यालय ने गलत परीक्षा केंद्र का नाम बताने की गड़बड़ाहट की, जिससे अभ्यर्थियों को भ्रमित कर दिया गया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार पुराने मालदा ब्लॉक के मधीपुर एयर हाई स्कूल के मंगलबाड़ी उस्मानिया हाई स्कूल में इस वर्ष की उच्च माध्यमिक परीक्षा की सीटें अभिभावकों की शिकायत के लिए मधीपुर एयर हाई स्कूल के हेडमास्टर ने शुरू से ही अभ्यर्थियों से कहा कि उनकी सीट मुछिया चंद्र मोहन हाई स्कूल में आवंटित कर दी गई है। परीक्षार्थियों ने संघर्ष करके अंतिम क्षण तक पहुंचने का प्रयास किया। पूरे मामले की जानकारी प्रशासन को दे दी गई है। हालांकि मधीपुर एयर हाई स्कूल के प्रिंसिपल ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों को एक्सरे सेवा सही तरीके से नहीं मिल रही है। मरीजों और उनके परिजनों का आरोप है कि सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में इलाज कराने आने वाले मरीजों को चिकित्सकीय देखरेख में एक्सरे सेवा के लिए करीब 5 किलोमीटर दूर सदर अस्पताल में भेजा जा रहा है। इस अस्पताल में रिपोर्ट लेकर आने के बाद फिर से घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। मरीज व उनके परिजनों की यह भी शिकायत है कि जिस मरीज के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है उसके पास एक एक्सरे प्लेट की इमेज मोबाइल पर नहीं आती है। जलपाईगुड़ी मेडिकल के प्रभारी ने अस्पताल की एक्सरे सेवा की इस समस्या को स्वीकार किया। এখানে কেন আসছেন? 10 তলায় গেছিলেন? 10 তলায় গেছি। তারপরে ওখানে ডাক্তার দেখাইছি। তারপর ডাক্তার বলল যে ওখানে হবে না, এখানে আসতে হবে। কেন ওখানে হবে না? কেন হবে না ডাক্তার বলে দিল, ওখানকার এসে বলে দিল স্টাফ, এখানে আসলো। ওখানে হলে ভালো হতো? ওখানে হলে তো ভালো হতো, এত দূর রাস্তা আসতে হতো না, রাজনীতি হতে হতো না। সমস্যা হচ্ছে না? সমস্যা তো হচ্ছে, সমস্যার জন্যই তো আসা যাওয়া। কিন্তু ওখানে এত বড় হাসপাতাল মেডিকেল কলেজ, সেটা কি আর আমরা বলতে পারি? ওখানে সরকারি হাসপাতালে এই ফ্যাসিলিটি হলে ভালো হতো? ভালো হতো, কিন্তু কি করা যায়।
সমস্যা হচ্ছে না আপনাদের এই যে যাতায়াতে টাকা পয়সা সময়? তো সমস্যা হয়, তো সমস্যা হবে না। কিরকম? এই যে আসি টোটো করে দিকে আসি, তাও টোটো ভাড়া দিতে হয়, আবার যাবো টোটো ভাড়া দিতে হয়, এগুলাই তো সমস্যা। শরীর ক্লান্ত হয়। রোগী আরো রোগী হয়ে যাচ্ছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটাই তো, কি? ভালোর জন্য আসা। হ্যাঁ, ভালোর আগে একটু অসুস্থ হওয়া যায় আর কি। এরকম যাতায়াত করলে এখান থেকে এখানে, এখান থেকে এখানে আরো অসুস্থ। হ্যাঁ, সেটা তো হবে একটু। আপনার নাম? আমরা সুরথি রায়। मालदा उच्च माध्यमिक परीक्षा के पहले दिन स्कूल प्राधिकारी के दुर्व्यवहार के विरोध में परीक्षार्थियों के एक समूह ने कथित तौर पर तोड़फोड़ की आरोप है कि स्कूल में प्रवेश करते समय शिक्षिकाओं की जगह कुछ शिक्षकों ने हाथों से छात्राओं की तलाशी ली। घटना कालियाचक थाना क्षेत्र के दरियापुर बैसी हाई मदरसा की है। खबर पाकर कालियाचक थाने की बड़ी संख्या में पुलिस बल परीक्षा केंद्र पर पहुंची। प्रदर्शनकारी छात्रों ने शिकायत की परीक्षा में प्रवेश करते समय मदरसे के शिक्षकों ने छात्रों की तलाशी ली। कई अभ्यर्थियों को शौचालय तक जाने की इजाज़त नहीं दी गई। हालांकि शिक्षकों का दावा है कि हम बोर्ड के निर्देश अनुसार काम कर रहे हैं, जैसा कि निर्देश दिया गया कि परीक्षा के दौरान कोई भी मोबाइल फ़ोन या अन्य कोई उपकरण प्रवेश नहीं कर सकेगा। ड्यूटी पर तैनात उच्च मदरसा के शिक्षकों ने छात्रों की शिकायत को नकारते हुए कहा कि परीक्षार्थी नकल करने का मौका पाना चाहते थे। मौका नहीं दिए जाने से नाराज होकर उन्होंने परीक्षा के बाद तोड़फोड़ और विरोध प्रदर्शन किया।